you. Hi. तो क्या कहना चाहेंगे इग्नाइट लाइट? Well, Ignite Edge, I think for a very, very long time we've been meeting me, Miss Malini, the entire team, and it was always great, you know, whatever the events that she used to cover, whatever she does basically in the showbiz business. And today to be a part of it, I think it is amazing. Also, the kind of exposure that you get as an artist, as an influencer, as somebody who works in this industry, it is amazing and बहुत मज़ा आया. नच बलिए में मेरी पहली मुलाकात हुई थी मिस मालिनी से और तब से लेके आज तक इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. और मैम इस तरह की जो टैलेंट कंपनी भी होती है तो कितना इम्पोर्टेंट होता है टैलेंट कंपनी एक स्टार के लिए, आपका क्या है? आई थिंक किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की जो टैलेंट कंपनी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्टली बिकॉज लाइक आई सेड यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है एंड मिस मालिनी ऑन सोशल मीडिया इज़ एब्सोल्युटली रॉकिंग एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई really took it up and I really thought about being a part of Ignite Edge. So I'm really hoping that, you know, she and me could do some great stuff together. ओके मान ली अगर आपकी अगर जनरल अगर आपकी अगर बात की जाए, आप किस बेस पे टैलेंट कंपनी चुनती हैं? मैं आप किस बेस पे टैलेंट कंपनी चुनती हैं अगर आप उसका हिस्सा बनेंगे? I think the team really matters. I think, you know, people who say that, you know, chalo aaj humne ek talent company kholi hai, but what really matters is how much you put into your talent, how much you get the work that your talent requires, because at the end of the day हम सब यहाँ पर काम करने के लिए है and you know आपको understand करने के लिए I think see because I'm somebody who comes from regional cinema as well, so any company or any talent person who has to kind of manage me has to understand that I get the best of both the worlds. So for me the team really matters and how much passionate they are and how much they want to put in you know in showcasing your talent. I think that is something that really matters. आपको ऐसा कब लगा कि एक्टर बनने का टैलेंट आपके अंदर है? अभी उसको बहुत साल हो गए तो लोगों को उम्र पता चल जाएगी. लोगों को पता चलेगा कि आपने कब पहचाना अपने टैलेंट को? देखिए मुझे नहीं लगता मैंने खुद पहचाना है. एक पैशन होता है, एक यू नो वो कहते हैं ना एक पुश होता है अपने आप से, एक इंस्टिंक्ट होती है, एक गट फीलिंग होती है और वो मुझे आई थिंक व्हेन आई वाज अराउंड 16-17 तब आई है एंड आई लव टू डांस. आई एम अ परफॉर्मर, सो फॉर मी परफॉर्मिंग इज समथिंग दैट इज़ इररिप्लेसेबल. थैंक यू जी. Apart from this, any upcoming project? सब पता लगेगा आपको, आज ही सब कुछ पता लगा ना. project? आई लेट यू नो. ओके, थैंक्स. बाय बाय. कहाँ से खुलता है? थोड़ा राइट में आइए, राइट में आइए, थोड़ा टाइम हो जाएगा. सर सामने सर सामने just to pose for the camera. Yeah, that's it. Thank you. Thank you. सर एक
थोड़ा सा और राइट में, मैं आपके राइट में ही है। बैग बंद कर दो। चलो निकले। ईशा मैम एक यहाँ पे बेटा उनको कर लो, बाइट कर लो, फिर कर लो। अरे मुझे जाना है। Yeah, what do you want to ask me? ओके ईशा, क्या कहना चाहेंगे? Where do I look? I look there? Sure. ओके, क्या कहना चाहेंगे? इग्नाइट एज का लॉन्च है, व्हाट डू यू लाइक टू से? English or Hindi? इंग्लिश। English? Well, first of all, many congratulations to Miss Malini, and she's full of spunk, and I'm sure her talent management company that she's launching, Ignite Edge, would be just like her. I just wish her all the very best, because there is a lot of talent that needs to be managed, and they need to be, their talent needs to be channelized well, and that's about it. Thank you so much. मैम टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितनी इम्पोर्टेंट होती है आपके टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैनेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब एक एक्टर अपनी टैलेंट लेके इस इंडस्ट्री में आता है तो उसको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एंड इट इज़ extremely crucial that the manager recognizes this talent and accordingly places the person. apart from this any upcoming project web series आपको कुछ ना Yes, there were a lot of projects that started in the beginning of 2020, just before the pandemic, and अभी 2 प्रोजेक्ट्स मेरे ख़त्म हो गए हैं. एक मल्टीलिंगुअल है, 5 लैंग्वेजेस में है. इट्स अ साउथ फिल्म, इट्स गोइंग टू बी रिलीज्ड इन 5 लैंग्वेजेस. इट्स अ साइंस फिक्शन. उसका नाम है एलियन, एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. ऐसे इस तरह की साइंस फिक्शन आपने अभी तक शायद ही नेशनली देखी होगी. एंड इट्स गॉट शिवकार्तिकेयन, शरद केलकर, रकुल प्रीत and me, of course. इसके अलावा there is an RGV web show that I'm doing, और उसके अलावा there are a lot of other web shows which are in the pipeline, जिसकी shooting just start हुई है, and it's hot. Yeah? Thanks. Look your left, ma'am. Ma'am, your left. मैडम जी ना देखिए रुकिए मैम, यहाँ पे होल्ड कीजिए. वेट बेटा, वेट. Okay. Oh, hi. हाय हाउ आर यू I'm fine. How are you? मैम आप बताइए मिस मालिनी ने एक नई कंपनी चालू की है टैलेंट मैनेजमेंट, आप वो क्या कहना चाहेंगे? Well, actually, उन्होंने मुझे भी approach किया था to handle my social media a few months ago, and that's the reason why I'm here, because I've been speaking to them for the last few months, and I congratulate them for launching Ignite Edge. और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, आप क्या कहना चाहिए? मतलब Important होती है obviously, because when you're shooting especially, it's very difficult for you to actually be doing everything of taking care of your social media, and it's like a job literally. So I think you do need people, and also obviously artists get brands themselves, but these companies also help you reach out to even more brands. So I think it's a two-way thing, and अच्छा. apart from this any upcoming project, कोई फिल्म
आपको अभी भी बताया था, साउथ की फिल्में हैं मेरी 2 जो कि चारों लैंग्वेजेस में रिलीज़ होंगी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड तमिल में. One is for Amazon Prime and another one is with Kichra Sudeep. Yeah. ओके श्रद्धा एक पोस्ट कर दीजिए कैमरे के अंदर पे यहाँ पे थोड़ा और राइट, बस बस यही ओके मम्मी क्या कहना चाहेंगी आज इग्नाइट एज का लॉन्च है Yeah, किस तरीके से जुड़ी हैं आप इसके साथ बताइए I'm very happy and I congratulate them for their initiative, and it's such a great thing because they are opening up the talent management company, and so many people are going to get the chance to it. So all the best, and you're going to rock for sure. थैंक यू Thank you. मेरे ईशा दिस साइड ईशा दिस साइड क्या What's up guys? ओके ईशा सबसे पहले तो इग्नाइट एज का लॉन्च है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑब्वियसली यू नो दिस इज़ एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है एंड ऑब्वियसली दिस वुड हेल्प यू नो न्यू टैलेंट ढूंढने में मदद करेगा प्लस जो नए टैलेंट है जो यू नो दिख नहीं पा रहे हैं आई वॉज वन ऑफ देम तो आई थिंक ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा एंड आई विश मिस मालिनी एंड इग्नाइट Edge all the very best and all the very best to the new talent that are trying to work their way up just like I did. So yeah, all the very best to all of you guys यार. ओके निशान अगर आपकी अगर पर्सनली अगर बात करें कोई भी टैलेंट मैनेजमेंट कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उससे जुड़ने के पहले किन किन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं यार सबसे पहले तो मैं जो सबसे पहली चीज़ है मैं कभी भी आई नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन माई सेल्फ क्योंकि अगर आप एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी हो एंड अगर आप मुझे रिक्रूट कर रहे हो तो मैं आपको ऐसा क्या ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप यू नो यू वुड वांट टू इन्वेस्ट इन मी तो आई थिंक हर सबसे पहली चीज़ होती है आप अपने आप पे काम करो आप अपने स्किल्स को होन करो क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा जब मैं पहली बार अपने ऑडिशन के लिए गया था आई वाज वेरी चिल्ड आउट आई वाज लाइक ठीक है स्क्रिप्ट भी मैंने अच्छे से याद कर लिया है मेरे दिमाग में मतलब पूरा यू नो आई वाज लाइक यू नो सलमान खान की तरह कि मैं ऐसे आऊँगा ये डायलॉग ऐसे बोलूँगा ये करूँगा एंड एज सून एज आई वेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मेरे मुँह से खाली इतना निकला है मैं इतना नर्वस हो गया था मैं सीधा ब्लैंक हो गया था ना आई वाज लाइक एंड द गाय वाज टेकिंग द ऑडिशन ओवर देयर ही वाज लाइक अगर आपको 5-10 मिनट और चाहिए आप प्लीज़ ले लो एंड आई वाज लाइक शिट यार ये क्या हो गया मेरे को तो आई थिंक वो एक जो स्टेज फ्राइट होती है वो एक नर्वसनेस होती है बिकॉज मैंने ऑडिशंस देते देते ही सीखा कि आप जितने ज़्यादा बेशर्म हो जाओ उतना आपके लिए बेस्ट है तो आई डोंट थिंक यू शुड गेट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरटेनर you should be ready for anything and everything. शायद बिग बॉस की अगर बात करें जर्नी छोटी रही लेकिन कितना बदलाव देखते हैं लाइफ में यार ऑनेस्टली क्योंकि जब मेरा वो बाथरूम इंसिडेंट हुआ था जब मैं अपने व्लॉग्स भी बनाना चालू किया मेरा मेन मोटिव ये था कि लोग देख सके उससे कि ज़ीशान खान एक्चुअली है कैसा अदर देन यू नो ज़ीशान खान फ्रॉम कुमकुम भाग्य या ये सीरियल या वो सीरियल नॉट दोज कैरेक्टर्स हु ज़ीशान खान इज़ तो जब ये मेरा बाथरूम वाला भी मैंने किया था व्लॉग इट वॉजंट फॉर पब्लिसिटी और एनीथिंग इट वॉज जस्ट लाइक क्योंकि व्हेन वी वर शूटिंग इन गोवा मैं बाथरूम में ही घूमता था एंड आई टू यू नो एंजॉय द होल वाइब तो मैंने बोला और जब हम लोग वापस जा रहे थे आई वाज लाइक यार मिस करूँगा ये बाथरूम का पूरा इवेंट या यू नो मी रोमिंग अराउंड इन अ बाथरूम आई वाज लाइक यार एक काम करता हूँ व्हाई डोंट आई इमॉर्टलाइज इट इन माई व्लॉग्स तो मैंने वो किया एंड दैट वेंट वर्ल्ड वाइड यार हर जगह
I was like, Bombay Times, Khalij Times, you know, London. My mom's friends are calling her up from New Zealand, and I was like, ये क्या हो रहा है? And mixed reviews आ रहे थे. कोई बोल रहे थे कि OP है, he's so cool, and you know, he has guts to do this. और कोई ऐसे थे कि हाँ, attention के लिए कर रहा है, क्या करना चाहता है, flash करना चाहता है. And I was like, guys, मैं flash क्यों करूँगा यार? तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ आए मुझे, लोगों को लगा. तो आई वाज लाइक, जब मुझे उसके बाद बिग बॉस का ऑफर आया, आई वाज लाइक, यू नो, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो मतलब सब देखते हैं. तो ऑब्वियसली इट वुड गिव मी अ चांस और ऑल्सो द पीपल अ चांस for me to show who I am and for the people to judge me and see how I really am. उसके बाद अगर आप मुझे hate करो या प्यार करो, that is up to you. But जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने सबका प्यार देखा and it was only love and I was so overwhelmed. And मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू एक बहुत ही छोटा शब्द है. इफ़ आई कुड, मैं हर एक को गले मिल के किस करता और बोलता थैंक यू यार इतने प्यार के लिए, बिकॉज आई ऑनेस्टली फील लाइक द किंग विद द लव दैट दे हैव गिवन मी. हम तो आपको बिग बॉस से बड़ा मिस कर रहे हैं, आप कितना बिग बॉस को मिस कर रहे हैं? यार मैं ऑनेस्टली जब से मैं बाहर आया और मुझे इतना प्यार मिल रहा है ना, बिग बॉस के घर में मैं पागल हो गया था. अगर मैं बिग बॉस में किसी को मिस कर रहा था तो वो था मिलिंद और दिव्या. मिलिंद आ गया, कल ही मैं उससे मिलकर आया हूँ. जैसे ही वो बाहर आया उसने मुझे कॉल किया, बोला जी कहाँ है तू? आई वाज लाइक मैं आ रहा हूँ, तू जा बेबी, मैं आ रहा हूँ. तो वो हुआ एंड उसके बाद आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग दैट हाउस. ऑफ कोर्स आई मिस द टास्क एंड एवरीथिंग, बट विद द अमाउंट ऑफ लव आई एम गेटिंग आई डोंट मिस दैट हाउस. वहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं. ये भी हमें कुछ मिलिंद की याद दिला रही है. ये मिलिंद का ही है, बिकॉज आई एम रैपिंग माई बॉय. क्योंकि जब लास्ट डे हमारा टास्क हुआ था, मिलिंद को ऐसे लग रहा था कि वो जाएगा उस हफ्ते या कुछ जो भी है. तो एट दैट टाइम मैंने मिलिंद को बोला था कि मिलिंद ने मुझे कहा था कि तुझे एक चीज़ एक गिफ्ट देना चाहता हूँ मैं. तो मैं बोला इफ दिस इज़ नॉट सेंटिमेंटल गिव मी दिस. एंड मेरा इंटेंशन इससे ये था कि आई विल वेयर दिस एंड आई विल रिप्रेजेंट माई बॉय. सो यू नो जो भी टास्क होगा आई गिव इट माई 100% एंड एवरीथिंग फॉर माई गाय. एंड वही दिन जब मैंने उससे ये लिया और वो टास्क में जो भी आप लोगों ने फिर देखा वो हुआ. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे निष्कासित कर दिया गया. तो व्हेन आई वॉकड आउट विद दिस एंड वाटरमेलन शुगर्स जैकेट. दोबारा से जाएंगे? कोई कॉल आया? आई वुड लव टू बट नॉट विदाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू. मिलते हैं पक्का. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द एक्टर्स. हर किसी एक्टर को रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल. और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. सो लुकिंग फॉरवर्ड दैट क्या है आप लोगों के पास में हम एक्टर्स के लिए. सो लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू मीट पीपल इनसाइड एंड आफ्टर लॉकडाउन आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट विच इज़ हैपनिंग. सो रियली एक्साइटेड. ओके, टीजर लॉन्च हो चुका है आपका क्लब का, किस तरह के रिस्पांस मिल रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. लाइक टुडे ओनली इट्स अ डबल मोमेंट फॉर मी बिकॉज टुडे चिरंजीवी सर ने लॉन्च किया है हमारे टीज़र को एंड रियली एक्साइटेड. फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं. फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ हॉकी प्लेयर इन माई लाइफ. लाइक यू नो आई हैव टू लर्न द स्पोर्ट्स. सो रियली एक्साइटेड कि लोगों को कितना पसंद आएगा और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फिल्म. ओके, मे डे की अगर बात करें तो क्या स्टेटस है उसका? May Day we have almost shot for 70% of the film. 30% बचा है और जैसे ही अजय सर फ्री होते हैं अपनी और कमिटमेंट से हम लोग वापस से वो चीज़ शुरू करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर विल बी रिलीजिंग इट. थैंक यू सो मच. One more. Wait. Thank you.
मैम हाउ मच मालिनी के द्वारा न्यू टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की गई है, क्या आप क्या कहते हैं? I think in the past few years, if somebody has proven their mettle in the social media business, has to be Miss Malini, and she has moved in the right direction in the past so many years. So to be associated with Miss Malini, to be associated with Ignite Edge, it's a great honor, and I'm very excited to see what my future holds with these guys. Apart from this, any upcoming project would you like to? Right now I'm on a show on Star Plus, so that's keeping me busy. I've just come from Naigaon, so you can imagine. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. ठीक है, आप लोग कैसे हैं सब? Excuse me. Sir, excuse me. सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आज के लॉन्च के बारे में? We are very, very happy for the entire Ignite team, Miss Malini team, for starting this phenomenal venture. और इन्होंने हमें भी बांध लिया है. And we are very proud to call the management because they're very hard working, you know. And क्या कहते हैं ना, आप उनको अपनी तरफ से कुछ कहो, वो 10 चीज़ें और लेकर आते हैं. You know, a talent or an artist always wants a management or a team that makes their thinking even bigger than what they would have thought of. हम आप दोनों को एक साथ कोई सॉन्ग में देखना चाहते हैं, कब होने वाला है ये सॉन्ग? हाँ, कोई सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग आप दोनों. चलो गाइए एक गाना. भाई, Please compose not today but भाई ज़िंदगी हमें नचा रही है. बच्चे गाना गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं उन पे. उनकी धुनों पे हम नाच रहे हैं. बट या यू नो व्हाट, वी वुड एक्चुअली that would be nice. मैं अभी तक सोचा नहीं गाना. आई थिंक आपने अच्छा एक आइडिया दिया है. तो और ऐसी हॉट सी बीवी है तो जाहिर सी बात है कि एक हॉट सा गाना ही, मतलब एक प्यारा सा गाना होना चाहिए. कुछ टिप्स देना चाहिए नए जोड़े लोगों को, कोई रोमांटिक कपल, आप दोनों इतने अच्छे कपल हैं, तो कुछ कोई टिप्स देना चाहिए आप कपल्स लोगों को? यार, लड़की और लड़के सारे जो हैं, टेक इट ईजी. यहाँ ज़्यादा पोजेसिव बनने की कोशिश मत करो. वो सिर्फ पिक्चरों में, सीरियलों में अच्छा लगता है. जो फितूर होता है ना प्यार मोहब्बत का, वो सिर्फ वहीं पर अच्छा लगता है. सो लोग आपको देखते देखते सीखे. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ सीरियल और फिल्मों में अच्छा लगता है. ज़िंदगी में बस सिर्फ प्यार. और कब आपने इनके टैलेंट को पहचाना? यू नो किसी को पहचाना भी एक टैलेंट होता है, तो आपने कब इनके टैलेंट को पहचाना है? नाउ क्या किसी, अरे भाई, अगर किसी से प्यार होता है वो टैलेंट की वजह से नहीं होता है. हाँ, एक्चुअली वो बात भी सही है कि सपोज इफ मैंने भी कुछ ऐसा गेम खेला होगा इनके साथ, वो मेरा टैलेंट है. टैलेंट कब पहचाना मैंने? जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने पूछा था सो व्हाट डू यू डू, एंड इन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ. असल में अच्छा आप एक्टिंग करते हैं. सो ऐसे एक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आई थी सब कह रहे थे, जिसको मिलो सब कह रहे हैं आई एम एन एक्टर. और जब हम पूछते हैं व्हाट हैव यू वर्कड इन, नथिंग येट बट आई एम वेटिंग फॉर माय ब्रेक, प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. सो इन्होंने कहा मुझे कि एक्चुअली आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड शरारत एंड वन कॉल्ड नहीं क्योंकि कर हाँ नहीं कुसुम में थे. सर आई एम एक्चुअली वर्किंग एक्टर. नो बहुत अच्छी बात है, बट आई स्टिल हैड नॉट सीन हिम. एंड देन जब इन्होंने बताया मुझे, then I watched him on TV and I thought, oh, he's such a good actor. आपको पता है ये उन दिनों की बात है 2006-2007 की बात है, जब पैपराजी सिर्फ या मीडिया जो है नहीं सिर्फ बॉम्बे टाइम्स के इवेंट्स, मॉडल्स उनको कवर करते, टेलीविज़न को इतना नहीं कवर करते थे. तो इनको पता नहीं था कि मैं एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हूँ और मेरे को एक्चुअली प्रूव करना पड़ा, मेरे को दिखाना पड़ा, ये देखो ये मेरा शो है. और फिर जब देखिए तो एकदम मतलब ऐसे ही हो गई उस शो के ऊपर, और प्यार हो गया और फिर प्रपोज कर दिया और शादी हो गई और लाइफ. बाद में पता चला अच्छा एक्टर भी है. गणपति की कुछ तैयारी हो गई है? जी, ये मैं कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त ऋत्विक, ओके, उसने एक प्रण लिया है पिछले कई सालों से
वो खुद तो मिट्टी के गणपति बनाते हैं। हम भी बिलीव करते हैं इन इको फ्रेंडली गणपति। बहुत साल, मतलब आई थिंक ये 48 या 49th ईयर होगा कि हम लोग गणपति रख रहे हैं, और पिछले 4-5 सालों से हम इको फ्रेंडली रख रहे थे। लेकिन ऋत्विक और करण वाही जो हैं और राकेश बापत भी, ये तीनों है ना मिट्टी के, मतलब क्ले के गणपति, जो मटके के क्ले होता है उसके गणपति बनाते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोला यार ये मतलब बच्चों को भी सिखाने के लिए एक बहुत अच्छी एक कला है। तो मैंने उनसे लास्ट ईयर पूछा था पैंडेमिक में, यार मुझे भी बताओ। हर साल भेजता है। तो बोले हर साल मैं तुम्हें मिट्टी भेजा करूँगा, तुम उसका एक अच्छा सा गणपति बनाना, बच्चों के लिए भी बनाना। सो दिस ईयर ऑल्सो वी डूइंग द सेम थिंग। उन्होंने मिट्टी आज ही भेजी है, बड़े कल ही बनाएंगे, और हम कल ही स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक 10 तारीख को अच्छा खासा एक मॉडल तैयार हो जाएगा, मेरा और मेरे दोनों बच्चों का। दोनों बच्चे भी बनाएंगे छोटे छोटे गणपति। तो तैयारी है मीडिया के लिए? Absolutely. Everyone's invited. Yes. Like every year. Thank you so much. Thank you guys Everybody so wear much. masks. Everybody please come. Thank you so much. Thank you. Thank you. Me.